morning, dear students. We are doing chapter 3, public, private, and global enterprises, and first chapter 3.1. Currently, we are doing, and today we will discuss next topic. The topic हम discuss कर रहे थे, that was the public sector, forms of public sector. First form, departmental undertaking, we have already discussed in previous lecture, and today we will discuss two forms, public corporation and government companies. Okay, so second form of public sector is the statutory public corporation. First of all, what is the meaning? It refers to that public enterprise which is created by a special act of parliament or state legislature. This statutory corporation or are public enterprises established and governed by a special act of the parliament, okay, or by the state or central legislature, right? Second, the act जो है इसका defines the power and functions, rules and regulations governing its employees and its relationship with the government departments, okay, and the corporation are financially independent with a clear control or a specified area or a particular type of commercial activities. जो ये corporations है ये completely independent है, okay, और इनके ऊपर जो control है वो किसी का नहीं है, मीन्स गवर्नमेंट का पूरी तरह से ये सेपरेट है. मतलब इनका जो ये जिस तरह से डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्या था, वो इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंगली ही उनको तो यहाँ डिफरेंट है. कॉर्पोरेशन फंक्शन एज ए कॉर्पोरेट पर्सन मैनेज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी यहाँ पर डायरेक्टर्स को और जो फंक्शंस वो करेंगे कॉर्पोरेट जो यहाँ पर पर्सन्स है. और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस एंजॉय द पावर ऑफ गवर्नमेंट, जो भी पावर्स गवर्नमेंट की हैं यहाँ पर उसको ये एंजॉय करेंगे. एंड ऑपरेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस, जो ऑपरेट वगैरह करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी है वो प्राइवेट की तरह है. सो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस आर मोस्ट सुटेबल फॉर प्रोजेक्ट्स विच नीड ह्यूज इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी गवर्नमेंट इसमें सपोर्ट करती है. एंड आर रन ऑन बिजनेस लाइंस बट विद द फोकस ऑन पब्लिक इंटरेस्ट. लेकिन यहाँ जो है मेन फोकस जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट पे होता है. अगर बाहर से इनको इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये पब्लिक से भी लोन ले सकते हैं इसमें, ठीक है. और मीन्स पब्लिक कॉर्पोरेशन fall in the category of the incorporated enterprises which are established under a special act of the parliament or state legislature which provides for its management and methods of running them. Their power and privileges are determined and their relations with the government department are specified. So यह जो public corporation है have separate legal existence, which means जो मैंने भी independent बताया आपको, so which means that they can purchase assets in their name. अपने नाम से वो asset purchase कर सकते हैं, अपना कोई कॉन्ट्रैक्ट्स या दूसरी पार्टीज के साथ कुछ भी जो है ये उनके ऊपर कुछ भी केस फाइल कर सकते हैं, वो उनके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं. सो देयर एंटायर कैपिटल इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट इसमें एम्प्लॉय जो है कैपिटल इन्वेस्ट करती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे स्टेट या फिर जॉइंटली दोनों हो सकती है. सो विच मीन्स दैट those corporations are fully owned by the government but they have the right to get loan from the public से भी ये लोन ले सकते हैं. okay, so departmental जो undertakings हमने किया, unlike that enterprise the income and expenditure of the corporation are not shown in the budget. वो बजट में शो नहीं होगा. जैसे उसमें क्या था, जो इनकम थी वो भी उनकी ट्रेजरी में जाती है और जो खर्चे हैं वो भी गवर्नमेंट कर रही है ना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है. Okay, and what are the examples of public corporation? First of all, LIC, Life Insurance Corporation of India. Second is Reserve Bank of India, RBI. Okay, और भी बहुत सारे examples हैं like Industrial Development Bank of India, Employees State Insurance Corporation, Central Warehousing Corporation, Food Corporation of India, Indian Airlines, Air India, Oil and Natural Gas Commission. Okay, these are the examples of public corporation. Okay, next topic, features. Features of public corporation. First is the formation.
स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन आर सेटअप अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जैसे कि भी मैंने बताया आपको, ये सेंट्रल या स्टेट लेजिस्लेचर दोनों में से किसी में भी हो सकता है, एंड आर कंप्लीटली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, ऑनरशिप किसकी रहेगी इसमें? गवर्नमेंट की। ओके, तो ये फॉर्मेशन जो है इसकी अंडर किसी एक्ट की है, कौन से? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जो कि सेंट्रल या स्टेट लेजिस्लेचर के अंडर है, और कंप्लीटली ऑनर बाय द owned by the government. Okay, second is the ownership. A statutory corporation is wholly owned by the state, and the government enjoys the power to appropriate profits and undertakes the responsibility to provide finances, bear losses if any. अगर कभी लॉस हो जाता है तो वो बियर करेगी गवर्नमेंट इसमें। ठीक है, और गवर्नमेंट जो है वो इसके जो प्रॉफिट्स हैं उसको भी गवर्नमेंट जो है इंजॉय करती है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अल्टीमेटली फाइनेंसेस की वो भी इसमें उसी की रहेगी। तो ऑनरशिप किसकी है यहाँ पर? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज होली ओन्ड बाय द स्टेट। ओके, थर्ड इज द मैनेजमेंट। द मैनेजमेंट ऑफ दीज corporations is looked after by the nominated directors of the government. जो डायरेक्टर्स अपॉइंट किए हैं गवर्नमेंट ने वो लोग इसको लुक आफ्टर करते हैं, तो मैनेज वही करेंगे सर। आफ्टर देन है फाइनेंसिंग। The corporation has independent financial structure. It prepares its own budget, retains its earning and utilizes them. खुद की अर्निंग जो है इनको उसको रिटेन करते हैं, अपने पास रखते हैं, एंड यूटिलाइज करते हैं उसको बिजनेस एज पर देयर प्लान ऑफ एक्शन. So thus it has no relation with the central budget of the government. Okay, so it can receive funds from the government borrowing as well. Next point is appointments. Appointments means जो employees जो यहाँ पर रखे जाते हैं, means corporation have their own rules regarding the appointments and remuneration of the employees. So the service condition are fixed by the board of director. जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वही डिसाइड करते हैं, ये सारी जो भी कंडीशंस हैं वो वही फिक्स करेंगे. सो द एम्प्लॉयज ऑफ द कॉर्पोरेशंस लाइक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग आर नॉट द एम्प्लॉयज ऑफ गवर्नमेंट. ये पूरी तरह से गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज नहीं है, जबकि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के जो एम्प्लॉयज थे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द सेपरेट लीगल एंटिटी. तो सेपरेट एंटिटी है इनकी, द कॉर्पोरेट identities. Statutory corporation allows them to enter into contract and acquire property in its own name. ये कोई भी प्रॉपर्टी अपने नाम से परचेज कर सकते हैं. It can sue other and can be sued by other. Okay. And next point is the administrative autonomy. Yes, there is no political interference in the corporation. तो ये बिल्कुल फ्री है इस चीज से. So they are free to the utilize those powers which they get through an act of the parliament or a state legislature, right? Then merits. Statutory corporation enjoy various advantages also. First is the autonomy in operation, जो कि अभी हमने लास्ट में किया. There is no interference of the government or political interference in the functioning of the public corporation. So they can pursue their activities independently. ये अपना काम जो है वो independently करते हैं, इनमें कोई interfere नहीं करता, ना government और ना ही कोई politics. Okay. Next, quick decisions. Decisions are taken quickly as there are no unnecessary or formalities and red tapeism. Means जैसे departmental undertaking में मैंने आपको ये last point बताया था, red tapeism. Means यहाँ पर जो काम है वो बहुत डिले होता है और जो फाइल्स हैं वो पड़ी रह जाती हैं, रेड उसको थ्रेड के साथ उसको बंधी रह जाती है, मतलब बहुत डिले होता है. और यहाँ क्या है, डिसीजन जो है वो क्विकली लिए जाते हैं, इसमें फॉर्मेलिटीज की बहुत ज्यादा नीड नहीं रहती है नेसेसरली, तो इसलिए ये जो है रेड टेपिज्म की प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है. मीन्स काम जो है वो डिले नहीं होगा. एंड देन है एफिशिएंट मैनेजमेंट. Besides the representative of the employees and the consumers, the government also nominates the professional managers to the board of directors for the corporation. Okay, so apart from it, the employees are paid enough salary and other facilities. यहाँ पर भी efficient management है, तो जो employees हैं उनको enough salary और जो भी है उनके facilities उनको दी जाती हैं. Efficient management is possible. Okay.
क्योंकि जो भी यहाँ पर कर रहे हैं वो नॉमिनेट किसने किए हैं, गवर्नमेंट ने, डायरेक्टर्स, उन डायरेक्टर्स ने ही यहाँ पर सब डिसाइड किया है, तो वही सब मैनेज करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल सर्विस मोटिव. So the main and secondary aim of the corporation are social services and profit respectively. मतलब प्रॉफिट के साथ साथ उनका मोटिव जो है यहाँ पर सोशल सर्विसेज भी है. फॉर एग्जाम्पल नो प्रॉफिट और वेरी लिमिटेड प्रॉफिट इज टेकन फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द कॉर्पोरेशन. इनका मोटिव ये नहीं कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना है, मीन्स अगर कई बार तो ऐसा भी है कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे भी ये लोग काम करते हैं, और या फिर बहुत लिमिटेड प्रॉफिट रखते हैं. ठीक है, तो मेन इनका जो है सर्विसेज प्रोवाइड करवाना भी इनका मोटिव रहेगा. नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट. कॉर्पोरेशन आर आंसरेबल टू द पार्लियामेंट, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली फॉर देयर एक्टिविटीज. ये लोग आंसरेबल होते हैं उनके लिए. सो द कॉर्पोरेशंस यूटिलाइज द पब्लिक मनी इन अ प्रॉपर वे. तो जो भी मनी इसमें इन्वेस्ट हुई है उसको ये प्रॉपर उसका यूटिलाइज करते हैं. तो अवॉइड एनी क्वेश्चनिंग, की इससे पहले कि उनके ऊपर कुछ भी क्वेश्चनिंग हो तो उसको प्रॉपर उसका यूटिलाइज करते हैं. सो एज अ रिजल्ट पब्लिक इंटरेस्ट आर सिक्योर्ड. Right? Yes. It suffers from various limitations. First one is incomplete operational autonomy. Means to declare that corporations have autonomy in operation is only theoretical. हम जैसे कह रहे थे कि अभी इनके पास ऑटोनॉमी है, कोई पब्लिक या गवर्नमेंट इंटरफेरेंसेस नहीं है, तो इसलिए ये बहुत इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं. बट ये थियोरेटिकली ही है, ये पॉइंट वो कह रहे हैं. सो इन रियलिटी देयर इज कंप्लीट गवर्नमेंट इंटरफेरेंसेस, क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंडर ही आती है. ये जो पब्लिक सेक्टर के अंडर है, तो ये फॉर्म किसकी है, पब्लिक सेक्टर की. तो ये प्रॉपर गवर्नमेंट के अंडर आती है, तो गवर्नमेंट इंटरफेरेंसेस तो रहेंगे. सो कॉन्सिक्वेंटली दे कैन नॉट टेक एनी डिसीजन फ्रीली. बहुत ज्यादा फ्री होकर ये डिसीजन नहीं ले पाते. ठीक है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की इंटरफेरेंसेस रहती है. सेकंड पॉइंट इज लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स. So the corporations are careless in their activities in the absence of competitive feelings and profit motive. क्योंकि इनका ज्यादा मोटिव जो है वो प्रॉफिट मोटिव भी नहीं है और कंपटीशन में भी नहीं है ये प्राइवेट लोगों के साथ. सो दैट्स वाई इनका जो वर्क है उसमें थोड़ा केयरलेस हो सकता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी रहती है अगर केयरलेस रहेंगे तो इससे लॉसेस की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है. एंड थर्ड इज इग्नोरिंग सर्विस मोटिव. So the member of board of directors utilize their power more for their own profit than the social welfare. वो लोग सोशल वेलफेयर के कंपैरेटिवली अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं. सो एज द सर्विस मोटिव इज ओनली अ फेक. मतलब ये सिर्फ फेक है कि ये सर्विस मोटिव है, अदरवाइज ये लोग अपने बारे में कुछ कई बार ज्यादा सोचते हैं डायरेक्टर्स. राइट नाउ यूटिलिटीज. The establishment of public corporation is profitable usable in the these two situations where a huge amount of capital is needed, and second is where public welfare is the top priority. Okay, तो यहीं पर ये public corporation जो है वो more suitable है. And third form of the public sector is the government company. This is the third and last form of the public sector. Okay, first form was departmental undertaking. Second जो अभी हमने की है public corporations, and third one is the government company. So government company is defined by the Indian Companies Act. This company established, registered and governed under the Indian Companies Act 1956. Okay, first of all. And second, a company established to conduct business in competition with the companies in private sector. फर्स्ट पॉइंट तो ये जो कंपनी है गवर्नमेंट फॉर 1956 इंडियन कंपनीज एक्ट के अंडर जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए. सेकंड थिंग इज द कंपनीज जो इस्टेब्लिश्ड होगी इस एक्ट के अंडर जो है वो कंपटीशन उसका किसके साथ रहेगा, प्राइवेट सेक्टर्स के साथ. एंड द कंपनी विच हैज एटलीस्ट 51% of the paid up capital held by the central government or state government, or partly by central or partly by one or more state government. Okay, and a company whose shares are purchased in the name of the President of India.
right? So it refers to that public enterprise which has a minimum 51% of the paid up capital in the name of the central government or state government, or partially or the central government and partially one or more the state government. Okay, मीन्स 51% से ज्यादा जो शेयर है वो गवर्नमेंट का होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और वो गवर्नमेंट कौन सी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट भी, और ये दोनों का मिक्सचर मीन्स सेंट्रल प्लस वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट. ओके, एंड द गवर्नमेंट कंपनी आर टू टाइप्स, wholly owned government companies where the entire capital is with the government, या तो ये हो सकता है कि जो गवर्नमेंट है वो जो कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, वो कंप्लीटली जो पूरी कैपिटल है वो गवर्नमेंट ने ही लगा रखा है, मतलब 100%. एंड सेकंड पॉइंट, इट मे बी मिक्स्ड ओनरशिप, मींस गवर्नमेंट कंपनीज वेयर द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक आर द ज्वाइंट ओनर्स, दोनों ज्वाइंट है, बट द मेजर पार्ट ऑफ द कैपिटल इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. मेजर पार्ट कितना होगा, मींस हाफ से ज्यादा 51% जो है वो गवर्नमेंट का होना जरूरी है. मींस गवर्नमेंट कंपनी ऐसी जिसमें या तो 100% जो पैसा लगा है, कैपिटल है, वो कंप्लीटली गवर्नमेंट ने लगाई है. सेकंड पॉइंट ये हो सकता है कि मोर देन हाफ मींस 51% या उससे ज्यादा का पोर्शन, मेजर पार्ट जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से और बाकी पब्लिक. ओके, बाकी जो पैसा है वो पब्लिक ने लगाया है. फॉर एग्जाम्पल, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कोल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड. ओके, मैसूर पेपर मिल्स, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड. ओके, these are the examples of government company in India. Now next topic is the features. First point is formation. It is an organization created by the Indian Companies Act 2013. अभी जो नया हमारा एक्ट है 2013, ठीक है, उसके अंडर इसको आप क्रिएट कर सकते हैं. सेकेंड इज द ओनरशिप. मिनिमम 51% ऑफ देयर पेड अप शेयर कैपिटल इज इन द नेम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और पार्शली इन द नेम ऑफ सेंट्रल एंड पार्शली इन द नेम ऑफ वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट. जिसका जितना भी यहाँ पर अमाउंट इन्वेस्टेड है ना, मींस या तो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट की हो सकता है या स्टेट का हो सकता है कंप्लीटली, या दोनों का जॉइंट हो सकता है, मींस कुछ पोर्शन सेंटर का और कुछ स्टेट का, या फिर कुछ सेंटर का और 2-3 स्टेट का भी हो सकता है. तो उस केस में ऑनरशिप भी उनकी अकॉर्डिंगली होगी, राइट. नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट इज द मैनेजमेंट. The management of the company is required by the provision of the Companies Act, like any other public limited company. It is managed by the board of directors, nominated or appointed by the government. ये भी गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्टर्स जो अपॉइंट किए जाते हैं वही मैनेज करते हैं इन कंपनीज को. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द फाइनेंसिंग. So they can be financed by the government as well as the public. अगर सपोज 100% पोर्शन गवर्नमेंट का है तो पूरा फाइनेंस गवर्नमेंट ही यहाँ पर लगाएगी, और इफ जॉइंटली है मीन्स कुछ पब्लिक का पोर्शन है और मेजर पार्ट गवर्नमेंट का है, तो उसके अकॉर्डिंगली जितना पार्ट गवर्नमेंट का है उतना फाइनेंस गवर्नमेंट देगी और बाकी पब्लिक. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज अपॉइंटमेंट. Appointment of employees. Okay, so the employees of the company are appointed according to the rules and regulations as contained in the memorandum and article of association of the company. क्योंकि ये कंपनी है तो इसमें memorandum of association और article of association जो है कंपनीज के, उसमें सभी रूल्स और रेगुलेशंस जो मेंशन है उसके अकॉर्डिंगली इनकी अपॉइंटमेंट की जाएंगी. ओके, और ये जो एम्प्लॉयज हैं दे आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज. कंप्लीटली जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की तरह ये कंप्लीटली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज द सेपरेट लीगल एंटिटी. तो द सेपरेट एंटिटी ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी अलाउज इट टू
it to enter into the contract. Means acquire property in its own name. ये अपने नाम से कोई भी कंपनी कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं, मीन्स परचेज कर सकते हैं और फाइल कर सकते हैं किसी के अगेंस्ट, या कोई भी थर्ड पार्टी इनके अगेंस्ट भी फाइल कर सकती है, क्योंकि ये सेपरेट है गवर्नमेंट से। नेक्स्ट पॉइंट इज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। The government company have complete administrative autonomy, so they can form rules regarding their own internal management. Okay. Next topic is merits. Merits of government company. Easy formation, means easy to establish. So a government company is registered under the Indian Act 2013. So therefore, there is no need for any separate act to be passed in the parliament. इसके लिए कोई separate act को pass करने की need नहीं है. Second is the autonomy in operation. So government companies can function independently due to the absence of the government interference. कोई government का interference नहीं है, independently ये work कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है. Third is the flexibility. So they can change their rules without any difficulty in the hour of need. क्योंकि flexibility रहती है, अगर इनको need है तो ये अपने कुछ भी rules को change कर सकते हैं, like private companies. Next, quick decision. Decisions are taken quickly in the absence of unnecessary formalities and red division. यहाँ पर भी कोई unnecessary formalities आपको need नहीं है, तो बहुत ही जल्दी से अपने decisions लेते हैं, जिससे कि काम जो है वो पेंडिंग नहीं रहता और रेड टेपिज्म की सिचुएशन क्रिएट नहीं होती. फिफ्थ इज द इजी फाइनेंसिंग. दे नीड not depend on the help of the government for their need of financing. If they wish, they can get capital and borrow from the public. ये publicly जो है finance collect कर सकते हैं. Next point is the benefit of private participation. Private sector can have a share in the government companies. So in such cases, expense of the professional managers of the private sector can be utilized by the including them in the board of director. क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर भी इंक्लूडेड होता है, उनका भी शेयर होता है. मैंने आपको बताया इफ 51% शेयर अगर गवर्नमेंट का है तो 49% प्राइवेट लोगों का भी हो सकता है पब्लिकली. तो इन सच केसेस जो एक्सपर्ट होते हैं, मैनेजर जो होते हैं ऑफ द प्राइवेट सेक्टर्स कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द इंक्लूडिंग देम इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. ओके, तो बेनिफिट उनको भी इसमें मिलता है, प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी होता है, तो प्राइवेट लोग भी इसमें अपना बेनिफिट ले सकते हैं. Next, limitations. First is the incomplete operational autonomy. Most of the directors of the government company are nominated by the government. क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है तो इसमें जो डायरेक्टर्स हैं वो भी गवर्नमेंट के अंडर ही रहेंगे और वही अपॉइंट करेंगे. सो दे आर चूजन फ्रॉम द वेरियस गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज. तो होता क्या है कि वो डायरेक्टर्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉलिटिकल उसमें होते हैं रिलेटेड. तो इस द डिफरेंट मिनिस्ट्रीज interfere the operation of the company through their representative. तो उसकी वजह से वो पॉलिटिकल इफेक्ट आने की वजह से उसमें उसका कंट्रोल रहता है मिनिस्ट्रीज का. So it can be thus that said that they do not have complete operational autonomy. इसलिए ये पूरी तरह से फ्री नहीं हो पाते हैं, तो इनको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की इंटरफेरेंसेस रहती है. Okay, next is the no continuity in politics. No continuity in policies. Continuity in policies is not achieved due to speedy replacement in the chairman and senior officers of the government company. So every new officer tries to run a company according to his will. So thus the aim of the companies cannot be completed due to the change in policies again and again. होता क्या है कि जो पॉलिसीज हैं जो एक बार बना दी गई हैं और जो एक बार पॉलिसीज बनाने की वजह से, जैसे सपोज जो भी चेयरमैन आएगा या जो भी पर्सन हेड रहता है उसको अगर वो अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंगली वो उसको चेंज करता है सपोज, तो उसकी वजह से ये लिमिटेशन रहेगी इसकी कि इसकी
पॉलिसीज जो है वो कंटिन्यूटी में चल नहीं पाती हैं, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंगली उसको चेंज करता है, हर कोई अपने हिसाब से उस कंपनी को चलाना चाहता है, तो उसकी वजह से वो अपनी पॉलिसीज में बार बार चेंज करते हैं, ठीक है। सो द कंटिन्यूटी इन पॉलिसी इज नॉट अचीव ड्यू टू स्पीडी रिप्लेसमेंट, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी चेयरमैन इसमें रिप्लेस हो जाते हैं और सीनियर ऑफिसर्स चेंज हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाती है उनकी। सो एवरी न्यू ऑफिसर जो है जो उसमें ट्राई करता है अपने अकॉर्डिंगली उसको चलाने के लिए, तो वो पॉलिसीज में चेंज करता है। सो द एम ऑफ द कंपनीज कैन नॉट बी कम्प्लीटेड ड्यू टू द, अब वो जो एम होता है मेन हमारा कंपनी का, उसको हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं क्योंकि बार बार पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं। किसकी वजह से? रिप्लेसमेंट की वजह से, जो चेयरमैन की रिप्लेसमेंट होती है बार बार। ओके, नेक्स्ट इज द थर्ड पॉइंट इज द लैक ऑफ प्रोफेशनल एफिशिएंसी। प्रोफेशनल एफिशिएंसी इज नीडेड टू रन अ कंपनी, क्योंकि यहाँ कोई भी कंपनी को स्मूथली चलाने के लिए प्रोफेशनल एफिशिएंसी की नीड है। सो दिस प्रोफिशिएंसी इज नॉट फाउंड इन द डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट यहाँ पर डिसाइड करती है ना डायरेक्टर्स को, उनमें वो प्रोफिशिएंसी नहीं होती है, प्रोफेशनल नहीं होते वो लोग। सो कॉन्सिक्वेंटली द कंपनी बिकम्स अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन प्लेस ऑफ बिजनेस अंडरटेकिंग। तो यहाँ पर भी ये बिजनेस अंडरटेकिंग की बजाय ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही बन के रह जाती है। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट इज द फियर ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। तो जो एनुअल रिपोर्ट होती है, एनुअल रिपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट में प्रेजेंट करनी होती है। सो द सीनियर डायरेक्टर्स डू नॉट टेक एनी रिस्की डिसीजन ड्यू टू द फियर ऑफ क्रिटिसिज्म इन द पार्लियामेंट। जो सीनियर डायरेक्टर होते हैं वो इसमें कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि उनको पार्लियामेंट की क्रिटिसाइज होने से प्रॉब्लम रहती है कि पार्लियामेंट में उनको क्रिटिसाइज किया जाएगा, तो वो कोई भी रिस्की डिसीजन नहीं लेते। सो वेयरएज इट इज नेसेसरी टू टेक सच स्टेप्स फॉर सक्सेसफुल रनिंग ऑफ द बिजनेस। और आपको पता है कि बिजनेस में कई बार रिस्की डिसीजन लेने ही होते हैं उसके सक्सेस के लिए, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उसकी वजह से कंपनीज रिमेन स्लो इन डेवलपमेंट फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो कंपनीज है वो काफी स्लो हो जाती हैं, तो उनकी डेवलपमेंट जो है काफी स्लो हो जाती है, वो प्राइवेट की तरह बहुत ज्यादा से स्पीडली डेवलप नहीं कर पाती, ग्रो नहीं कर पाती है। ओके, अब यूटिलिटीज कहाँ है इसकी, गवर्नमेंट कंपनीज की। The utility of the government company is in this situation, first of all, where the private ownership is also needed along with that the government, जहाँ थोड़ा बहुत हम प्राइवेट लोगों को भी ऐड कर सकें, ठीक है, and where activities related to finance are to be encouraged, such as formation of State Trading Corporation of India. Third is where the interest of various parties is in danger, as was the case when the government purchased most of the shares of Swadesh Cotton Mills for the welfare of the employees, the seller and the public. Okay, and where the government desires to transfer a new undertaking to private sector after its establishment, right? So this was the form of public sector. Next topic in your books is the comparative study of various public enterprises like departmental undertaking, public corporation and government companies. So this topic you can do by yourself. इस जो तीनों में differences हैं वो आप अपने आप करेंगे. And next difference between public and private enterprises, that difference you can do by yourself. Okay, this is very important question from the exam of point of view of the, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो यू कैन डू बाय योरसेल्फ. डिफरेंसेस हैं ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनीज, प्लस एक डिफरेंस है आपके पास पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस, right? So now the 3.1 topic is completed, and thank you students, have a nice day. If you have any queries now you can ask in these two topics. Okay.